Hello everyone, this is Shubham and welcome back to our channel that is Commerce and Management Hub. Today's topic of discussion is sources of finance. The term finance simply means money that is used to run a business. किसी एक्टिविटी के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी मनी यूज़ की जाती है, दैट मनी इज़ सिंपली टर्म्ड एज फाइनेंस. फाइनेंस वो इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है एक बिजनेस के लिए in the same manner as the blood functions for the human body. There is no existence or we can't even imagine the existence of business in the absence of finance. So एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पूरा करता है एंड द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स एट्सेट्रा. The financial source meet the short-term, medium-term and long-term financial need of a business as well. अब अगर हम बात करें sources of finance की तो sources of finance on the basis of financial requirements have been depicted in this very slide. There are three types of finance, that is long-term finance, medium-term finance and short-term finance. सो द फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. जब एक बिजनेस अरेंज करता है फाइनेंस फॉर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए पीरियड मोर देन 5 ईयर, 5 या 5 से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर फाइनेंस अरेंज किया जाता है देन इट इज़ टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म फाइनेंस. लाइक फाइनेंस का अरेंजमेंट फॉर द परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी इंक्लूड्स अंडर इट. लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अंडर 2 parts, that is own fund and borrowed fund. As own fund is clear from its name, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की जाए by the owner of the enterprise, it is termed as own fund. The sources of own fund include equity shares, preference shares, reinvestment of profits or retained profits, which has been classified in this slide. So the first one is shares. हर कंपनी की कैपिटल डिवाइड की जाती है स्मॉल पार्ट्स में एंड एवरी सच पार्ट इज़ कॉल्ड शेयर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज़ 50 lakh which is divided into 5 lakh shares of 10 each, then every part of 10 will be termed as shares. Now these shares are of two types, that is equity shares and preference shares. First one is equity shares. The equity shares are used as long-term financial sources. These shares do not have any certain rate of dividend, which means अगर बिजनेस को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा. As against it, if the business earn much profit in any other year, then they are given dividend at higher rate. These shares are also termed as journal shares. Next one is preference shares, the share which have a right of getting dividend and capital before equity share. As it is clear from its name, that is preference shares, इनको preference मिलती है equity share से पहले. इनका डिविडेंड पहले से ही अलग किया जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट है चाहे लॉस है. There can be various type of preference shares like cumulative and non-cumulative, redeemable and non-redeemable, participating and non-participating, convertible and non-convertible etc. प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड रिसीव करेंगे ऑन प्री डिटरमाइंड रेट्स जो पहले डिसाइड किए गए हैं और इनको राइट है कैपिटल लेने का बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज. बट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, but the equity shareholders have a right to participate in the management of the company as they are the owner of the company. The next point of owned fund is GDR and ADRs, that is Global Depository Receipts and American Depository Receipts. So GDR is such a document which is issued by the companies of a country in foreign countries for obtaining the foreign exchange, and it is issued by Overseas Depository Bank.
अगर एक इंडियन कंपनी की डिज़ायर है टू रिसीव फंड्स बाय द मीन्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से. देन द कंपनी इशू देयर शेयर्स टू डिपॉजिटरी विच हैज़ इट्स ऑफिस इन इंडिया. नेक्स्ट अगर हम बात करें ADRs की, इट इज़ सच अ डॉक्यूमेंट विच इज़ इशूड बाय द कंपनी आउटसाइड America to the Americans in order to receive the foreign capital. These are like GDRs, but these are issued by US Depository Bank in US, and these certificate that the shares of Indian company are with the depository custodian of India. And the next third point is retained earnings or plowing back of profits or self-financing. अगर कोई बिजनेस जर्नल रिजर्व क्रिएट करना चाहे बाय सेविंग सम अमाउंट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट एज डिविडेंड एंड यूज़ इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, तो वो सेव्ड अमाउंट जो भी होगा इज टर्म्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स. कि बिजनेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करके उस अमाउंट को जनरल रिजर्व की फॉर्म में डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहा है. द नेक्स्ट पार्ट इज़ बोरोड फंड which is received from bank, financial institution and public as debt. बाकी जितने भी financial sources हैं except those of owned fund like debentures हो गए, long term debts from financial institution and lease financing are included under borrowed fund. So the first one is debentures. The debentures are in the form of written proof of debt raised by a company which are issued under the common seal of the company. इसके अंदर फेस वैल्यू डिस्क्राइब की जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है, मेंशन किया जाता है, टर्म्स ऑफ पेमेंट, रिडीम अमाउंट कितना मिलेगा. These meet the long term financial needs of the business. Next one is long term loans from financial institutions. कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू बिजनेस. IFCI प्रोवाइड करता है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो ये सब जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ लीज फाइनेंसिंग. कोई भी प्रॉपर्टी का एक ऑनर है, उससे अप्रूवल ली जाती है टू यूज़ द प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एंड इन रिटर्न ऑफ सर्टेन अमाउंट इज टर्म्ड एज लीज फाइनेंसिंग. उनके बीच का जो एग्रीमेंट होगा, ओनर और यूज़र के बीच का जो एग्रीमेंट होगा उसे बोलेंगे लीज एग्रीमेंट, और द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर इट इज़ कॉल्ड लेसर एंड द यूज़र ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड लेसी. The next type of finance is medium term finance. अगर बिजनेस अरेंजमेंट करता है फाइनेंस की फॉर ए पीरियड फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर, 1 से 5 साल के लिए, देन इट इज़ नोन एज मीडियम टर्म फाइनेंस. इसमें सोर्स आते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स और मीडियम टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक. पब्लिक डिपॉजिट किस तरह से कि कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम द पब्लिक एंड द पब्लिक डिपॉजिट्स मीट द मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी. अब जो पब्लिक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है बैंक रेट से. नेक्स्ट वन इज़ मीडियम टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक. जैसे कि पहले सोचा जाता था कि मीडियम टर्म लोन्स के लिए बैंक प्रोवाइड नहीं करेगा, बट नाउ दीज हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मीडियम टर्म फाइनेंस ड्यू टू रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफर्ड बाय IDBI. द थर्ड टाइप ऑफ फाइनेंस इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंस. When a business make arrangement of finance only for meeting the financial requirement for a period up to 1 year, then it is termed as short term finance. अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस में शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल्स बैंक आते हैं जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आती है. अब ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है टू देयर कस्टमर अंडर विच दे कैन विड्रॉ मोर अमाउंट एज कम्पेयर टू दैट डिपॉजिटेड इन देयर अकाउंट. द अमाउंट विड्रॉन ओवर दैट डिपॉजिट in the account is termed as overdraft.
ऐसे ही अगर हम कैश क्रेडिट की बात करें तो कमर्शियल बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो लोन ले सकते हैं बट अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। ऐसे ही नॉन बैंक सोर्सेज हैं, ट्रेड क्रेडिट है, कमर्शियल पेपर्स हैं, कस्टमर एडवांस है। So this is all about sources of finance. At last, it can be concluded that finance plays an important role in the economic and financial system of the country as well. And raising finance as loan from the financial institution is more suitable for the companies which have a regular income more than the paid interest on loan. Thank you.